योग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां प्रथम्यां शुभतिथौ श्री भगवतः श्री वासुदेवस्य दिव्याज्ञया प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री भूमनीला गोदा पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवास स्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं कल्याण उत्सवकर्मणि अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य कल्याणोत्सव उभयदातलु మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క నక్షత్రం రాశి మరియు మీ పిల్లల యొక్క నక్షత్రం రాశి స్మరించుకోవలసిందిగా మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా கோருச்சுனாம். கல்யாணோத்சவத்துக்கு சமர்ப்பித்த உபயதாதர்கள் உங்களுடைய கோத்திரம் பேரு நட்சத்திரம், உங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் வீட்டை அம்மாவுடைய நட்சத்திரம் ராசி, அவங்களுடைய பேரு குழந்தைகளுடைய பேரு நட்சத்திர ராசியை மனசில் நினச்சிக்கோங்கன்னு கேட்டுக்கொள்கிறோம். कल्याणोत्सव उभयदात आपका नाम गोत्र और आपका पत्नी का नक्षत्र राशि और आपका परिवार बच्चे का नक्षत्र राशि मन में प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करता है. काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थम श्री पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थम सर्वानुकूलता सिद्ध्यर्थम श्री पद्मावती सन्निधौ श्रीपांचरात्र भगवच्छास्त्रोक्त विधानेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये. श्री पद्मावती प्रीयताम प्रीयताम भगवती पद्मावती. मंगलवाद्यम. ஓம் ஸ்ரீ பத்மாவதியை நமக. மந்திரலக்ஷ்மியை தந்திரலக்ஷ்மியை யந்திரலக்ஷ்மியை நமோ நமக. நமோ குருகிருபா லக்ஷ்மியை மகாலட்சுமியை நமோ நமக. பக்தர்களே, இன்று வியாழக்கிழமை, குருவாரம் என்பார்கள். இந்த நன்னாளில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அம்சமான ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரை நாமும் ஆச்சாரிய ரூபத்திலேயே வழிபடுவோம். அந்த தாயாருக்கு அவளது மணாவளரான சீனிவாச பெருமானோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து தாயாரின் பெருமாளின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ண சுவாமி. ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகமப்படி நடைபெறுகிற திருக்கல்யாணத்தில் கலச பூஜை, ஸ்ரீ விட்டக்சேனரின் ஆராதனம், புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம் ஆகியவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இனி நடைபெற உள்ளது. நாமும் அந்த திரு நிகழ்வுகளை தரிசிப்போம். பக்தர்களே, ஒரு ஆச்சாரியனுக்குரிய பொறுப்பு எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது என்பதை இப்போது பார்க்கலாம். ஒரு குருவிடம் நிறைய மாணவர்கள் குருகுல வாசம் இருந்து கல்வி பயின்று கொண்டிருந்தார்களாம். அதில் ஒரு மாணவன் இன்னொருவரின் பொருளை திருடும்போது கையும் களவுமாக பிடிபட்டான். ஆசிரியர் முன் நிறுத்தப்பட்டான். குரு அவனுக்கு திருடுவது எவ்வளவு பாவம் என்பதை விளக்கிவிட்டு இனி அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் என்று புத்தி சொல்லி அனுப்பினாராம்.
ஒரே வாரத்தில் மீண்டும் அந்த மாணவன் தன் கைவரிசையை காட்ட பொறுக்க முடியாத மற்ற மாணவர்கள் குருவிடம் கொண்டு போய், இவன் இனிமேல் இந்த குருகுலத்தில் இருக்கக்கூடாது, இவனை இந்த முறை நீங்கள் வெளியேற்றாவிட்டால் நாங்கள் இங்கிருந்து போய்விடுவோம் என்று ஒரே குரலில் சொன்னார்களாம். உடனே குரு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? சரி, நீங்கள் அனைவரும் செல்லலாம் என்றாராம். இதை எதிர்பாராத அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைய, அப்போது குரு விளக்குகிறார். நல்லது கெட்டதை சரியானபடி மாணவர்களுக்கு விளங்கச் செய்வதுதான் கல்வி. நீங்கள் திருடுவது பாவம் என்பதை அறிந்து விட்டீர்கள். அந்த பாப்பச் செயலை பொறுத்து கொள்ளக்கூடாது என்பதையும் தெரிந்து கொண்டு விட்டீர்கள். ஆகவே நல் வழியில் செல்லும் நீங்கள் எங்கு போனாலும் நன்றாக இருப்பீர்கள். இவனுக்கு இன்னும் நான் சொல்வது சரியாக விளங்கவில்லை போலிருக்கிறது. ஆகவேதான் திரும்ப திரும்ப தவறு செய்கிறான். இவனை திருத்துவது குருவான என் கடமை அல்லவா என்று சொன்னதும் அனைவரும் வாயெடுத்து போனதோடு, இப்பேற்பட்ட குருவாக தங்களுக்கு கிடைத்த பாக்கியத்தை எண்ணி பூரித்தனராம். திருடியவனும் திருந்தினானாம். பக்தர்களே, நமது தாயாரும் இப்படித்தானே. எத்தனையோ தவறுகள் புரிந்த நாம் இந்த திருச்சானூர் வந்து அந்த தாயாரின் திருவடிகளை படியும் போது அவள் தனது கருணையினாலும் அன்பினாலும் நம்மை நல்வழிப்படுத்தி எம்பெருமானை சேவிக்க அனுப்புகிறாள் அல்லவா? ஆகவே அவளை நாம் ஆச்சாரிய ரூபத்தில் சேவிப்பது விசேஷம் அல்லவா? லக்ஷ்மீநாத சமாரம்பாம் நாத யாமுன மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு குரு என்றதில் கு என்ற அக்ஷரம் அக்ஞானத்தை குறிக்கிறது. ரு என்கிற அக்ஷரம் அதை தெளிவுபடுத்துவதை குறிக்கிறது. ஆகவே குரு என்கிற ஆச்சாரியன் நம்மிடம் உள்ள அக்ஞானத்தை அகற்றி நமக்கு ஞானத்தை தருகிறார் என்பது புரிகிறதல்லவா? பக்தர்களே, ஸ்ரீமன் நாராயணன் பிராட்டிக்கு உபதேசம் செய்ய அதன் பின்பு ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர் முதலான ஆச்சாரியர்கள் அதை தொடர்ந்தனராம். இந்த வகையில் பெரிய பிராட்டியான தாயார் நம்மை போன்ற பக்தர்களை வழி நடத்தி செல்ல இந்த திருச்சானூரில் கொலுவிருக்கிறாள் என்பது புரிகிறதல்லவா? ஒரு ஆச்சாரியரின் கடமையே நான் அந்த மேற்சொன்ன உதாரணத்தைப் போல தன் சிஷ்ய ஜனங்களுக்கு நல்லவைகளை போதித்து அவர்களை நல்ல மனிதர்களாக உருவாக்குவதுதானே. அதே போல அந்த உபகாரத்தை தான் தாயார் நமக்கு செய்கிறாள். அபயப்பிரதாம், அபயம், உங்களுக்கு நான் இருக்கிறேன் என்று தனது அபயஹஸ்தத்தை காட்டி நம்மையெல்லாம் அவளிடம் அழைக்கிறாள் தாயார். திருமகள் எதிலெல்லாம் வசிக்கிறாளோ அதெல்லாம் நமது வணக்கத்துக்குரியவை. அதனால்தான் அந்த தாயார் ஆவிர்பவித்த திருப்பார்க்கடலை நாம் திவ்ய தேசமாக வணங்குகிறோம். எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனும் அந்த ஸ்தலத்தின் மகிமையால் ஆக்கர்ஷிக்கப்பட்டு அங்கே சயன திருக்கோலத்தில் சேவை தருகிறாராம். தேவர்களும் ரிஷிகளும் பகவானிடம் விண்ணப்பிக்க, அதாவது தங்கள் குறைகள் தீர முறையீடு செய்ய வரும் இடமே திருப்பார்க்கடல்தான். தேவியின் திருக்கண்கள் எந்த திசையில் திரும்புகிறதோ அங்கெல்லாம் செல்வங்கள் வெள்ளமென பெருகும்.
विषस्कृधे यत्ते सोमादाभ्यन्नामजाग्रे वेतस्मै ते सोमाय स्वाहा स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वे मे स्वाङ्कृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा स्वभव स्वोर्याय देवेभ्यस्त्वामरीचिपेभ्यो देवाग्नसो यस्मै त्वेळे तत्सत्यमुपरिप्लुता भङ्गेन हतोऽसौ फट्प्राणाय त्वां यहनाय त्वा उपयमगृहीतोऽस्यन्तर्यच्छमघवन् पाहि सोमम् पुरुष्यरायो वेषो यजस्व अन्तस्तेद्या वा पृथिवी दधाम्यन्तर्दधां नुर्वन्तरिक्षम् सजो देवेभिरवरे परेश्चान्तर्यामे माधवन्मादयस्व स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वे मे स्वाङ्कृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा स्वभव स्वोर्याय देवेभ्यस्त्वामरीचिपेभ्य उदहनाय त्वा आवाहयो भूषशुचिपा उपानः सहस्रं ते नियुतो विश्ववहरा उपोते अन्धो मध्यमयामि यस्य देवदधिषे पूर्वपेयं वायवे त्वाम् इन्द्रवायो इमे सुता उपप्रयोभिरागतम् इन्दवो वा मुषं विहे उपयामगृहीतोऽसि वायवा इन्द्रवायुभ्यां त्वेषते योनिः सजोषोभ्यां स्वा अयं वाहं मित्रावरुणा सुतः स्वमारता वृथा ममे देह श्रोतगहवम् उपयामगृहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्यां त्वा रहया वयज्ञसा सवाज्ञसोमदे महव्येन देवायवसेन गावाः तां धेनुं मित्रावरुणायुवन्नो विश्वाः दत्तमनापस्फुरन्ते येषते योनहरतायुभ्यां त्वा यावाङ्कषा मधुमत्यश्वेन सोनृतावते तया यज्ञं मे मिक्षतम् उपयामगृहीतोऽस्यश्वेभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्ने उपयामगृहीतोऽस्यश्वेभ्यां द्वैषते यो निर्मादेभ्यां त्वा तं प्रत्रथा पूर्वधा विश्वधेमधा ज्येष्ठदाद्यं बर्हिषदग्स्वर्विदम् प्रदेशेनं वृजनं दोहसे ध्वने मा सञ्जयन्त मनया सुवर्धसे उपयामगृहीतोऽसि षण्डाय त्वा एषते योनिर्विरतां बाह्यपमृष्टश्चण्डो देवास्त्वा शुक्रपा प्रणयन्दनाः दृष्टासे
सुवीरो वीरान् प्रजनयन् वरेह्यभिप्रायस्पोषेण यजमानम् सञ्जग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्रशोजिषा निरस्तश्चण्ड शुक्रस्य धृष्टानामसि अच्छन्नस्य ते देवसोमसुवेर्यस्य राहयस्पोषस्य दधितारस्यामा सा प्रथमा सग्नस्क्रधर्विश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्नेः स प्रथमो बृहस्पतिश्च गत्वाग्नस्तस्मा इन्द्राय सुतमाजोः तस्वाहा त्रम्पन्दः त्रामधोर्यत्स्वेष्टं यत्सुभृतं यत्स्वाहा अयं वेणश्चोदयत्पृष्णे गर्भात् ज्योतिर्जरायो रजस विमाने इममपाज्ञसङ्गमे सौर्यस्य शिशुन्न विप्रा मतिभिरिहन्ते उपयामगृहीतोऽसि मर्कायत्वा मनोनुयेषु हवनेषु तिग्मं विपस्यज्जावनुतो द्रवन्तः आयश्चर्याभ्यस्त्ववेण्ड्रं न अस्याश्रेणेतादिसङ्गभस्तौ एष ते योनिः प्रजाः पाह्यपमृष्टो मर्को एवास्तामन्थिपा प्रणयन्त्वना धृष्टासे स्वप्रजा प्रजा प्रजनयन् वरेह्यभिरायस्पोषेण यजमानम् सञ्जग्महनो दिवा पृथिव्या मन्थे मन्थिषोजिषा निरस्तो मर्को मन्थिनो धृष्टानामसि अच्छन्नस्य ते देवसोमसुवेर्यस्य रायस्पोषस्य दधितरस्यामा सा प्रथमा सग्नस्क्रधर्विश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्नेः स प्रथमो बृहस्पतिश्च गत्वाग्नस्तस्मा इन्द्राय सुतमाजोः तस्वाहा त्रम्पन्दः त्रामधोर्यत्स्वेष्टं यत्सुभृतं यत्स्वाहा ये देवासो दिव्येकादशस्थ पृथिव्या मध्येकादशस्थ अप्सुक्षितो महिनेकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमञ्जोषध्वम् उपयामगृहीतोऽस्याग्रयणोऽसि स्वाग्रयणः पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम् विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण पातु विष्णुं तं पाह्यभिः सवनानि पाहि सोमः पवते सोमः पवते सोमः पवते अस्मै ब्रह्मणे पवते अस्मै क्षत्राय पवते अस्मै सुन्वते यजमानाय पवते इष ऊर्जपवतेभ्य ओषधेभ्यः पवते यावा पृथिवेभ्यां पवते सुभूताय पवते ब्रह्मवर्चसाय पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा बृहद्वा देवयस्वत उक्थायुवं गृह्णामि यत्त इन्द्र बृहद्वयस्तस्मै त्वा विष्णवे त्वैषते योनि पृग्धेभ्यस्त्वा
देवेभ्यस्त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्राय त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्राग्निभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्राय त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्र बृहस्पतिभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्र विष्णुभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्र विष्णुभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्राय त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्र वरुणाभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्र बृहस्पतिभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्र विष्णुभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे मूर्धानं दिवो आरतिं पृथिव्या विश्वानरमृत आजातमग्निं कविज्ञसम्राजमतेऽधिञ्जनानामासन्नापात्रं जनय तदेवाः उपयामगृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि ध्रुवक्षेदर्ध्रुवाणां ध्रुवतमोच्युतानामच्युतक्षित्तमः एष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा ध्रुवं ध्रुवेण मनसा वाचा सोममवनयामि अथान इन्द्र इद्विषोः सपत्राः समानसस्करत् यस्ते रप्सस्कन्दाति यस्ते अग्निशुग्रावच्युतो धिषणयोरुपस्थात् अध्वर्योर्वा परे वाय पवित्रार्तन्ते जुहोमि मनसा वषट्कृतज्ञस्वाहा देवानामुत्क्रमणमसे उपयामगृहीतोऽसि मधवे त्वोपयामगृहीतोऽसि माधवाय त्वा उपयामगृहीतोऽसि शुक्राय त्वोपयामगृहीतोऽसि शुचाय त्वा उपयामगृहीतोऽसि नभसे त्वोपयामगृहीतोऽसि नभस्याय त्वा उपयामगृहीतोऽसि त्वोपयामगृहीतोऽस्योर्जे त्वा उपयामगृहीतोऽसि सहसे त्वोपयामगृहीतोऽसि सहस्याय त्वा उपयामगृहीतोऽसि तपसे त्वोपयामगृहीतोऽसि तपस्याय त्वा उपयामगृहीतोऽस्यग्हसस्पतये त्वा इन्द्राग्ने आगतज्ञशुतङ्गेर्भिर्नभो वरेण्यम् अस्य पातं धियेषिता उपयामगृहीतोऽसीन्द्राग्निभ्यां द्वेषते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा आघाय अग्निमिन्धते स्तृणन्ते बर्हिरानुषक् येषामिन्द्रो युवा सखा उपयामगृहीतोऽस्यग्नेन्द्राभ्यां द्वेषते योनिरग्नेन्द्राभ्यां त्वा ओमासश्चर्षणे धृतो विश्वे देवास आगता दास्वाग्नसो दासुषः उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिर्विश्वेभ्यः
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः विश्वे देवास आगतशृणुताम इमग्नहवम् एदं बर्हिर्निषेदत उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमै यथा सौर्याते अपिबत्सुतस्य तव प्रणीते तव शूरशर्मण्णाविवासन्ते कवयस्व यज्ञाः उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वाद एष ते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वादे मरुत्वं तं वृषभं वा वृधा नमकवारिं दिव्यज्ञसाशमिन्द्रम् विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रज्ञसाहोदा मिहतज्ञहुबेमा उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वाद एष ते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वादे उपयामगृहीतोऽसि मरुता ओजसे त्वा सजोषाः इन्द्रसगणमरुद्भ्यः सोमं बिभवृत्रः शोरविद्वान् जहिषत्रोऽग्निरपमृधोऽनुतस्वाधाभयं कृणये विश्वतो नः उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वाद एष ते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वादे महा इन्द्रो नृवदाचर्षणिप्रा उत द्विबर्हा अभिनः सहोभिः अस्मद्यग्वावृधे वीर्यायोरः पृथु सुकृतः कर्तृभग्भूत् उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्रायत्वैषते योनिर्महेन्द्रायत्वा महा इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमौ इव स्तोमेर्वत्सस्य वावृधे उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्रायत्वैषते योनिर्महेन्द्रायत्वा कदाचनस्तरेरसिनेन्द्रसश्चसि दासुषे उपोपेन्नुमाघवन्धो य इन्नु ते दानं देवस्य पृच्छत आदित्येभ्यस्त्वा कदाचन प्रयुज्यस्युभे निपासि जन्मने तुरीयादित्यसवानन्द इन्द्रियमातस्था अमृतं दिव्यादित्येभ्यस्त्वा यज्ञो देवानां प्रत्येदि सुम्नमादित्यासो भवतामृळयन्तः आवोर्वाजे स्वमतर्वावृत्यादग्नहोश्चद्यावरिवो वित्तरा सदा नित्येभ्यस्त्वा विवस्वां आदित्यैषते सोमपेधस्तस्मिन् मत्स्वा श्रदस्मै नरो वचसे दधात न यदाशीर्दा दम्पादेवा मम श्नुतः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते वस्पथा विश्वाः रपयेधते गृहे वाममद्य सवितर्वाममुष्वो दिवे दिवे वाममस्मभ्यग् सावीः वामस्य हि क्षयस्य देवभूरेरया धिया वामभोजस्यामा
கீர்த்திலக்ஷ்மி நமஸ்தேஸ்து விஷ்ணுவஷ்டஸ்தலஸ்திதே கீர்த்திம் தேஹி ஸ்ரீயம் தேஹி சர்வ காமாம்ச தேஹி மே. ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் திருமார்பில் உறையும் கீர்த்திலக்ஷ்மியே நமஸ்காரம். மங்காத புகழையும் நிறைவான செல்வத்தையும் கொடுத்து நல்ல எண்ணங்களை கொடுப்பாயாக என்று இந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை வேண்டிக் கொள்வோம். அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அம்சமான ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, ராமாயண காவியத்தில் ராமன் சீத்தையை தேடி வரும்போது சபரி இலந்தை பழங்களை கொடுத்தாளாம். இதில் ஒரு சூக்ஷமம் இருக்கிறது. எப்போதும் ராம மந்திரத்தை வாழ்நாள் முழுவதும் ஜபித்தவள் வேடுகுலப் பெண்ணான சபரி. சீத்தையை தேடிக்கொண்டு ராமலக்ஷ்மணர் வரும்போது மதங்க முனிவரின் ஆசிரமத்தை அடைந்தனர். ரிஷிகுமாரர்கள் மூலம் நடந்ததை அறிந்த சபரிக்கு ஒரு புறம் ஆனந்தம், மறுபுறம் வேதனை. ஸ்ரீமன் நாராயணனை ஸ்ரீ மகாலட்சுமியோடுதான் சேவிக்க வேண்டும் என்பதை அவளது குருவான அந்த மதங்க முனிவர் அவளுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தார். ஆனால் இப்போதோ ராமன் சீதாதேவியை பிரிந்து தனியாக அல்லவா வருகிறான். உடனே தன் குருவை பிரார்த்தித்தாளாம். அவளுக்கு ஞான திருஷ்டி வந்தது. ஆசிரமத்து வாயிலில் உள்ள இலந்தை மரங்களிலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பழுத்த இலந்தை பழங்களை கொண்டு வந்து ஸ்ரீராமனின் திருக்கரத்தில் கொடுத்துவிட்டு ராமனை பிரதட்சணம் செய்தாள். விழுந்து சேவித்தாள். ராமா, உன்னை தனியாக சேவிக்க எனக்கு மனமில்லை. சீதாதேவி இன்று உன்னை எப்படி சேவிப்பது என்று குழம்பினேன். என் குருநாதர் அறிவுறுத்தினார். பதரி என்கிற இந்த இலந்தை, அந்த இலந்தை பழம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் ஸ்வரூபமாம். ஆகவே உனது திருக்கரத்தில் இந்த இலந்தை பழத்தை கொடுத்து சீதாதேவியாக ஸ்மரித்து கொண்டு உன்னை வணங்கினேன். என் ஜென்மம் இனி சாப்பல்யமானது. எனக்கு இனி வேறொன்றும் வேண்டாம். சீத்தை உனக்கு நிச்சயமாக கிடைப்பாள் என்றாளாம். அந்த சீதாதேவிதானே நமது ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார். அந்த தாயாரின் திருக்கல்யாணம் இது.
సంజాతం ఓమా ఆసాతా yo paya payama sai masiya mandra sudya chara sarama sai masiya dosho aghat rohatgaya dumadgaman atharvana stuhi ye devam savova ta tohayi yesho vrushaha. सप्ताहं प्रदरन्ति सप्तशीर्षण्या प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरन्धे आहुतिरुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अदो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा. అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ
వాడల వాడల నీవు వయ్యాళి తోలగాను మేడలెక్కి చూచిని అలమేలు మంగ వాడల వాడల నీవు వయ్యాళి తోలగాను మేడలెక్కి చూచిని అలమేలు మంగ వీడెము చేత పట్టుక వెస నీవు పిలువగా వీడెము చేత పట్టుక వెస నీవు పిలువగా ఆడ నుండి వచ్చే నీ కడకల మేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ ఇంత చనవీయగాను మేళములాడి నీ అలమేలు మంగ ఈ లీల వెంకటేశు ఇంత చనవీయగాను మేళములాడిని అలమేలు మంగ ఏలిన నీరతులను ఇదే తన నేరు పెళ్ళ ఏలిన నీరతులను ఇదే తన నేరు పెళ్ళ ఆలోచనలు చేసి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ
वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ